اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اینڈ آف ٹائمز، آخر الزمان۔ قرآن شریف کو پڑھنا اور ہر لفظ کو سمجھنا ہم پہ لازم ہے، لیکن قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ لوگ اپنی آوازوں کو دوران تلاوت یا خوشی و غمی کی محفلوں میں اس طرح بدلا کریں گے، خوبصورت بنایا کریں گے کہ اس سے دولت کما سکیں۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی قرآن پڑھے اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرے۔ بے شک ایسی قوم آئے گی جو قرآن پڑھ کر لوگوں سے اس پر اجرت طلب کیا کرے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پہ شدید صدمے کا اظہار کیا۔ ذرا غور فرمائیے کہ صدیوں پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرما رہے تھے۔ آج ہم اپنے پیاروں اور قریب ترین رشتہ داروں کے ایصال ثواب کے لیے ان مدارس سے طلبہ کو طلب نہیں کرتے جنہیں عام زندگی میں ہم حقارہ سے دیکھتے ہیں، اور کیا اس کے لیے ہم اجرت نہیں دیتے، انہیں کبھی رقم یا کبھی دیگوں کے کھانے کی صورت۔ ایک اور حدیث سے متفقہ علیہ ہے، یعنی اسے صحیح بخاری و مسلم دونوں نے روایت کیا ہے، جبکہ سلسلے میں انجیل کی کتاب دانیال میں بھی روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ زمانے باہم قریب ہوں گے، علم اٹھا لیا جائے گا، فتنوں کا ظہور ہوگا اور حرج کی کثرت ہوگی۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ حرج کیا ہے؟ تو فرمایا قتل و غارت۔ گزرے 1400 سال کی تاریخ کا جائزہ لیں اور اس میں وبا ہوتی جنگوں کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ کسی ایک خطے، علاقے یا ریاست تک محدود ہوا کرتی ہیں، لیکن گزرے 100 سال کے دوران ہم نے وہ جنگیں دیکھی جنہوں نے پوری دنیا کے سیاسی، معاشی اور سماجی نظام کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ جنگ عظیم اول کے دوران 2 کروڑ انسان لقمہ اجل بنے، جبکہ دوسری عالمی جنگ کے دوران یہ تعداد 5 کروڑ سے بڑھ گئی۔ اس کے بعد چین، گواتمالا، کانگو، کیوبا، ویتنام، لبنان، کشمیر، یوگوسلاویا اور چچنیا کے حالات آپ کے سامنے ہیں، لیکن افغانستان، عراق، ایران، لیبیا، شام، مصر، یمن، مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک بشمول اسرائیل اور یورپ کی موجودہ صورتحال اور پھر جنوبی ایشیا کے ممالک کا تذکرہ بعد میں تفصیل کروں گا کہ وہ آخر الزمان کے حوالے سے کچھ تفصیل چاہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کی قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، دنیا ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ لوگوں پر ایسا دن آئے گا کہ قاتل نہ جان سکے کہ اس نے کس وجہ سے قتل کیا، اور نہ مقتول کو معلوم ہوگا کہ وہ کیوں مارا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایسا کیسے ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بکثرت خونریزی ہوگی اور قاتل و مقتول دونوں جہنم کا رزق بنیں گے۔ ہمارے دور کی جو علامات ظاہر ہو رہی ہیں ان میں سے ایک کا ذکر حدیث میں اس طرح سے ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچانک موت کثرت سے واقع ہوگی۔ ناگہانی اچانک اموات، یعنی اچانک دل کا دورہ، حرکت قلب بند ہو جانا، دماغ کی شریان پھٹ جانا یا پھر کوئی حادثہ۔ پہلے زمانوں میں انسان عموماً ایک مخصوص مدت کے بعد کمزوری اور پھر بیماریوں کا شکار ہوا کرتے تھے اور پھر اپنی زندگی کے اختتام کی خود تیاریاں شروع کرتے تھے۔ زیادہ تر معاملات میں سمجھا جاتا تھا کہ یہ مرض الموت ہے۔ اہل و عیال یا کاروبار سے متعلق اہم فیصلے، وصیت، عبادات کی طرف رغبت اور اپنے گناہوں کی مغفرت، زندگی میں کیے گئے جو بھی غلط کیا ان کا کفارہ ادا کرنے کی کوشش، اگر کسی کا قرض ہے تو حساب چکتا کرنے کی آرزو، بچوں کی شادیاں، تعلیم وغیرہ سے فراغت کی جستجو، پھر اہل خانہ کو الوداع کہہ کے کلمہ و توحید کے ورد کے ساتھ دنیا سے رخت سفر ماننے کی تیاری۔ زیادہ تر زندگی کا خاتمہ اسی طرح ہوا کرتا تھا، لیکن اب ایک اچھا خاصا انسان بالکل صحت مند، کوئی بیماری نہیں، کوئی تکلیف نہیں، اور اچانک اس کے انتقال کی خبر سنتے ہیں۔ یہ قیامت کی علامات متوسطہ میں سے ایک ہے، یعنی وہ جو 1400 سال پہلے بیان ہوا اس وقت ہمارے گرد ہو رہا ہے۔ ایک وقفہ اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہے۔ خوش آمدید۔ جزیرہ نما عرب کے جنوب میں ربیع العالی اور حضر الموت کے علاقوں کے درمیان ایک خلاف نامی علاقہ ہے۔ خلاف کے لفظی معنی ہے ریت کے بڑے بڑے ٹیلے۔ 6500 سال قبل مسیح یہاں قدیم قبیلہ عاد آباد تھا۔ تاریخ عرب انہیں عرب بائدہ یعنی مٹ جانے والے عربوں کے عنوان سے یاد رکھتی ہے۔ یہ شاندار تمدن رکھتی قوم تھی اور اسے قرآن میں
من بعد नूह कौम कह के याद किया गया है, यानी हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बाद की कौम। ये इलाका जो आज एक वसी और वीरान रेगिस्तान है और जिसके अंदर दाखिल होने से ही लोग घबराते हैं, हजारों साल पहले ये एक सरसब्ज और शादाब जमीन हुआ करती थी जिसके मर्द तनुमंद और कवि हैकल हुआ करते थे। ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम की नस्ल से थे, क्योंकि जब तूफान के बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम को नवेद मिली कि ऐ नूह कश्ती से बाहर आ जाओ, तो आपकी उम्र 600 साल हो चुकी थी। 1500 दिन के बाद आप अपने साथियों और जानवरों के जोड़ों के साथ खुशकी पे उतरे और जमीन को दोबारा बसाने का ख्याल आया, तो दुनिया के 3 हिस्सों को अपने 3 बेटों के हवाले इस तरह किया कि बेटे हाम को दरिया नील का इलाका, बेटे याफ्त को दरियाए मैसून, जबकि बेटे साम को जमी का वस्ती इलाका दे दिया, जिनकी औलादों को बाद में तमाम अक़वाम पे गलबा हासिल हुआ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की वफात के 450 साल बाद साम की नस्ल से कौम आद ने जन्म लिया। रूह जमीन पर ऐसी कोई कदावर कौम पैदा न हुई और फिर ये ताकत के नशे में मस्त गुनाहों और बदकारियों की तमाम हदूद अबूर करते चले गए। गरूर से उनकी गर्दनें अकड़ गईं और उन्हें नाज था कि ये नूह अलैहिस्सलाम के खलीफा हैं, और तभी ऐसा घुमंड कि रफ्ता रफ्ता ये भूलते चले गए कि इसी गुमराही के सबब तो कौम नूह पे अज़ाब इलाही नाज़िल हुआ था। इस तरह के तमाम दरवाजे जब बंद हो गए और पूरी कौमी गुनाहों की दलदल में धंसने लगी, तो अल्लाह ताला ने हूद अलैहिस्सलाम को उनकी हदायत का जिम्मा सौंपा, जो कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पड़पोते आद बिन इरम के घराने से निस्बत रखते थे। हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि हूद अलैहिस्सलाम अरबी बोलने वाले पहले शख्स थे। ताकत के नशे में चूर इस कौम ने हत्तार के नाम से एक बुत भी बना रखा था और रोज रोज की नसीहतों से तंग आके कौम के दराज ताकतवर लोग जमा हुए और उन्होंने पैगंबर हूद अलैहिस्सलाम से कहा कि अब हम मजीद सुनना नहीं चाहते, अगर तुम अपने कौल में इतना ही सच्चे हो तो जल्द अजाब लेके आ जाओ ताकि हमारा तुम्हारा किस्सा ही पाक हो जाए। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर मेरी तबलीग का तुम्हारे पास यही जवाब है तो बिस्मिल्लाह, अब तुम भी इंतजार करो और मैं भी करता हूं। और फिर कानून जज़ा से पहले शदीद खुशसाली ने इलाके में डेरा डाला। हूद अलैहिस्सलाम ने फिर तंबीह की कि अब भी अगर ईमान ले आए तो शायद बच जाओ, लेकिन कौम के मुकद्दर में हलाकत लिखी जा चुकी थी, जैसा कि इरशाद बारी ताला हुआ, चुनाचे उन्होंने हूद अलैहिस्सलाम को झुटलाया और हमने उन्हें हलाक कर डाला। बिलाशुबा इस वाक़े में बड़ी निशानी है, लेकिन अक्सर लोग ईमान नहीं लाते। बेशक तेरा रब ही गालिब निहायत रहम वाला है। एक तेज आंधी चली जिसका अजाब मुसलसल 7 रातें और 8 दिन जारी रहा। हवा के तेज और तुम तूफान ने कौम आद को तहबाला करके इस तरह उठा उठा के पटखा कि उनके जिस्म रेजा रेजा और हड्डियां चूर चूर हो गई। यह हलाकत खेज आंधी ऐसी थी कि इंसानों को पहले फजा में बुलंद करती और फिर औंधे मुंह पटक देती, और फिर कभी हैकल इंसान इस तरह बेहिस्सो हरकत पड़े थे जिस तरह तूफानों के बाद तनावर दरख्त बेजा होके गिर जाते। कौम हूद के इस वाक़े का तस्करा अरबी ज़बान के एक मुहावरे में भी मिलता है कि ऐद रसालत में जब किसी नुमाइंदे को आम मकसद के लिए भेजा जाता तो कहते कि आद की तरह ना बन जाना, यानी ऐशो और इशरत में डूब के अपना मकसद ना भूल जाना। मुफस्सिरीन हलाक शुदगान की तादाद 4000 बयान करते हैं। अहले अरब हूद अलैहिस्सलाम की वफात और कब्र के हवाले से मुख्तलिफ दावे करते हैं। बेशतर के नज़दीक वो कौम आद के मारे जाने के बाद हदरुल मौत के शहरों की तरफ हिजरत कर गए थे। वहीं उनकी वफात हुई और वादी बरूद के करीब हदरुल मौत के मशरकी हिस्से एक शहर तमीम से तकरीबन 2 मरहले पे उनकी तदफीन हुई, जबकि कुछ के नज़दीक हूद अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन के मकाम जबरेश या फिर इराक के शहर नजफ। और अलामा हबली रहमतुल्लाह अलैह सीरतुल हबलिया में लिखते हैं कि हजरत हूद अलैहिस्सलाम और हजरत सालेह अलैहिस्सलाम दोनों की कब्रें मस्जिदुल हराम में रुकने यमानी और हजर अस्वद के दरमियान हैं। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि एक रोज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ लाए और फरमाया कि आयशा, मेरे जाने के बाद तुम्हारी कौम के लोग यानी अरब जल्द ही मुझसे मिलेंगे। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि मैंने पूछा कि फिर उस वक्त या उसके बाद के लोगों का क्या हाल होगा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो बगैर परों वाली टिड्डी की तरह होंगे, ताकतवर कमजोर को खा जाएगा हत्ता कि उन पर क़यामत काम हो जाएगी।
गोया सिर्फ अलामत क़यामत में ही दौलत और ताकत का नशा नहीं, क्योंकि ये अजाब तो पहले भी कौम हूद समेत दीगर अक़वाम पे नाजिल हुआ। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौजूदा दौर की यूं भी खबर दी कि मुसाफतें कम हो जाएंगी, शहरों और ममालिक का दरमियानी फासला कम होगा और एक बाजार से दूसरे बाजार तक पहुंचना आसान हो जाएगा, ख्वाह फासला कितना ही ज्यादा क्यों ना हो। फितने ना फैल जाएं, झूठ की कसरत ना हो और बाजार करीब ना हो जाए। फिर अंजील के अहदनामा कदीम की किताब दानियाल के 12वें बाब की आयत 3 और 4 के तर्जुमे के मुताबिक दानिशमंद रहनुमा आसमान की तमाम रोशनी के साथ मुनव्वर होंगे और जिन्होंने बहुत से लोगों को हक का रास्ता दिखाया होगा वो आसमान के सितारों के मानिंद चमकेंगे। उसने यानी फरिश्ते ने मुझसे कहा कि दानियाल, अब तुम अपनी बातें बंद करो और किताब को कयामत तक के लिए सरबमोहर कर दो। बहुत से लोग इधर उधर दौड़ेंगे और इल्म की कसरत होगी। यहां यह भी अर्ज करता चलूं कि बाइबल के किंग जेम्स वर्जन में इल्म की कसरत के अल्फाज की बजाय ये इबारत यूं है कि इस दौरान बहुत से लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकयात रोनुमा हो रहे हैं और वो अपनी कोशिशों को जाया करेंगे। अंजील के बरक्स जहां कयामत से पहले इल्म की कसरत का जिक्र है, एक हदीस मुतफक्का है यानी मुस्लिम और बुखारी दोनों की रवायत के मुताबिक क़यामत से पहले इल्म उठा लिया जाएगा। बज़ाहिर यहां दोनों बयानात दोनों किताबों में इख्तिलाफ नजर आता है, लेकिन मेरी नजर में इख्तिलाफ नहीं है, क्योंकि हम जिस दौर में जिंदा रहते हैं उसे इल्मी सैलाब का दौर कहा गया है, ख़ुसूसन कंप्यूटर की इजाद के बाद मालूमात का जमाना। मैंने यहां मालूमात या इंफॉर्मेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, इल्म या नॉलेज का नहीं। इल्म और मालूमात यानी इल्म और नॉलेज में बड़ा फर्क है। आज का मीडिया आपको खबरों की सूरत मालूमात तो फराहम करता है जिसका इल्म से कोई ताल्लुक नहीं, और खबरों के सैलाब में इंसान बिल्कुल बेबस नजर आता है। चंद साल पहले लंदन में एक सेमिनार का उन्वान था इंफॉर्मेशन ओवरलोड, जिसमें बताया गया था कि पूरी इंसानी तारीख में जितने भी साइंसदान किसी भी दौर में पैदा हुए उनकी मजमूई तादाद से ज्यादा इस वक्त जिंदा है, और वो साइंस की मालूमात में 8 से 10,000 सफ़ात फी मिनट के हिसाब से इजाफा कर रहे हैं, यानी 60 करोड़ सफ़ात के बराबर तहरीरी मवाद यौमिया, और इसमें से अक्सर इंटरनेट पे भी जारी हो रहा है। आज दुनिया की आबादी 7 अरब है और उसमें से 2.9 अरब आबादी इंटरनेट इस्तेमाल करती है। 2004 में मुतारफ हुई फेसबुक की मार्केट वैल्यू इस वक्त 212 अरब डॉलर से ज्यादा है, जिसके जरिए हर रोज तकरीबन 890 मिलियन इंसान एक दूसरे से राब्ता करते हैं, जबकि ट्विटर को, जो कि चंद साल पहले यानी 2006 में ही मुतारिफ हुआ, आज 500 मिलियन लोगों से ज्यादा बाहमी राब्ते का वो सबब है। 1970 में जब अमेरिकन खलाई जहाज अपोलो 13 खला में कहीं गुम हो गया तो अमेरिकन खलाई इदारे नासा को उसे तलाश करने में 90 मिनट लगे, और आज उनके तज्जियाकार कहते हैं कि अगर हम कागज कलम उठा के उन मालूमात को तहरीर करने की कोशिश करें तो हमें उसमें 10 साल लगेंगे। चुनाचे इस दौर में हदीस मुबारका के वो अल्फाज के इल्म उठा लिया जाएगा, बात समझ में आती है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया कि ये मालूमात का सैलाब है, इल्म का नहीं। कभी एक मामूली सी सुई पे नजर रखते करिश्मों की मौजूदगी में आए दिन बड़े बड़े मुसाफिर तैयारे गायब हो रहे हैं, नामालूम वजूहात की बुनियाद पे क्रैश हो रहे हैं, और मालूमात का ये सैलाब उस इल्म को भी भागे ले गया है जो इंसान के लिए दुनिया में हयात तैयबा और आखिरत में दायमी ज़ाब्ते का पैगाम था। इंफॉर्मेशन ओवरलोड के इस अफरीद से पूछिए कि क्या उसने आम इंसान को पहले से बेहतर बना दिया है? क्या हमें इस कायनात के खालिक के बारे में पहले से कुछ ज्यादा मालूमात फराहम हो गई हैं? क्या पढ़ने लिखने और डिग्रियां हासिल करने से हमारी जहालत खत्म हो गई है? हम बाखबर तो बन गए, लेकिन क्या आलिम भी बन गए? क्या रिश्तों का तकद्दुस भी बेहतर हो सका? और क्या मुखलिस और दयानतदार इंसानों की तादाद दुनिया में ज्यादा हो गई? क्या कत्ल और गारत में कुछ कमी वाक़ई हुई है? और क्या भूख और अफलास खत्म हो गई? चुनाचे हदीस मुबारका के मुताबिक जिस इल्म के उठ जाने की खबर दी गई है वो कुरान और सुन्नत के अलावा कुछ नहीं। यानी मुझे ये तो खबर हो कि समुद्र में कितनी मछलियां तैरती हैं, या जंगलों में कितने शेर और चीते घूम रहे हैं, या फिर आज की दुनिया के किस इलाके में तलुए या गरूब आफ्ताब का क्या वक्त है, लेकिन ये खबर ना हो कि मेरी अपनी जिंदगी का मकसद क्या है और खालिक कायनात ने मुझे इस दुनिया में भेजा क्यों था। और मेरे लिए तमाम मालूमात, ये तमाम खबरें फिर वबाल जान।
कॉलेजों यूनिवर्सिटियों की बेहतरीन महंगी तरीन डिग्रियां मेरे लिए बेकार होंगी। जैसा कि पहले हदीस में बयान कर चुका कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म के उठाए जाने के बाद हर तरफ कत्ल और गारत की खबर दी। गर्ज ये कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो मौजूदात जो आपके वसाल के बाद सदियों बाद जाहिर हो रहे हैं और आइंदा के भी जिनके बारे में आप खबर दे गए, बिलाशुबा एक एक करके सामने आ रहे हैं और आइंदा नस्लों के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत और हक्कानियत की मिसाल है। ये सब वो अलामातें मुतवस्सिता हैं जो जाहिर हो रही हैं लेकिन अभी अपने इंतहा को नहीं पहुंची, लेकिन उनकी रफ्तार में हर रोज इजाफा हो रहा है और तेजी आ रही है और होती चली जाएगी, यहां तक कि तीसरी किस्म की अलामात जाहिर ना हो जाएं। मसलन सही बुखारी की वो हदीस जिसका तस्करा मैं एक वक्फे के बाद करूंगा। खुशामदीद, गौर फरमाइए। सही बुखारी के मुताबिक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मामलात नाअहल लोगों के हवाले होने लगे तो कयामत का इंतजार करो। खुदगर्जी और लालच माशरे में आम होंगे, रिश्वत तहाइफ की शक्ल अख्तियार कर लेगी। मजीद अलामात कुछ यूं बयां होती हैं कि अहले मस्जिद आपस में लड़ेंगे और वहां कोई नमाज पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा, सिर्फ जान पहचान के लोगों को सलाम किया जाएगा। और फिर वो सही हदीस जिसे तिबरानी ने अबू उमय्या अजमी से रवायत किया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत की अलामतों में से एक कम उम्र लोगों के यहां इल्म की तलाश है। इस हदीस का मफहूम यह है कि उन लोगों से दीनी मसाइल पूछे जाएंगे जिनको इल्म पे कुदरत नहीं और जो खुद गुमराह होंगे और दूसरों को भी भटकाएंगे। और फिर यह भी फरमाया कि अहमक शाम से मजलिस में बैठा करेंगे। एक और सही हदीस में हजरत अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आखिरी जमाने में लोग कबूतर के बोटे की तरह स्याह खिजाब लगाया करेंगे और वो जन्नत की खुशबू ना सूंघ पाएंगे। मर्द औरतों के और औरतें मर्दों के रूप धारा करेंगी। बुखारी में ही इब्न मालिक अशरी से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान रवायत है कि मेरी उम्मत में कुछ लोग होंगे जो रेशम, मैनोशी और गाने बजाने को हलाल समझेंगे। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़ना फैल जाएगा, मर्द कम और औरतें ज्यादा हो जाएंगी। आप में से अक्सर ने बहरे मुर्दार या डेड सी का नाम सुना होगा और मुमकिन है उस इलाके में कुछ लोगों ने सफर भी किया हो। यह दरअसल एक नमक की झील है जो मशरिक में उर्दन और मगरिब में इजराइल के साथ वजूद रखती है। इसका पानी 34% नमकीन यानी दुनिया के किसी भी समंदर, दरिया या झील से ज्यादा नमक रखता है। इसलिए इस पानी में जिंदगी नामुमकिन, ना कोई मछली और ना कोई और समंदरी मखलूक वहां रह सकती है। ये पानी उनके लिए जहर है, इसीलिए उसे बहरे मुर्दार या अरबी में बहरुल मय्यत भी कहते हैं। इस झील के जनूब में वो इलाका है जहां एक दौर में सादोन और आमूरा समेत 5 बस्तियां थी। अंजील के मुताबिक यहाँ आबाद कौम सदून को अपना सदर मकाम करार देती थी। ये तमाम इलाका जहां बहर मुर्दार नजर आता है, यहाँ वो बस्तियां आबाद थी जिन्हें जदीद साइंसी रिसर्च के मुताबिक 2000 साल कबल मसीह एक भयानक ज़लज़ले ने आके तमाम इलाके के साथ मिल गया। हजरत लूत अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान शरीफ में 72 मकामात पे आया है। आप हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे और उनके साथ हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने जनूबी इराक से हिजरत की थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम और लूत अलैहिस्सलाम दोनों का असल वतन इराक के शहर बसरा के नजदीक बाबल की वो बस्ती थी जिसका जिक्र सूरह बकरा में आया। हिजरत के वक्त लूत अलैहिस्सलाम की बीवी भी उनके साथ थी और ये खानदान जब मिस्र पहुंचा तो वहां चरवाहे बादशाहों का दौर था। हालात नासाजगार हुए तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फलस्तीन की जानिब निकल गए और भतीजे लूत अलैहिस्सलाम सदून की वादी की तरफ चले गए, जहां के बाशिंदे अगलाम बाजी समेत दीगर बदतरीन गुनाहों में इस तरह मुब्तला थे कि इस फेल का नाम ही सदूमियत या सोडोमी पड़ गया। चुनांचे लूत अलैहिस्सलाम ने लोगों को इस बदफेली से मना करते हुए इस तरह आवाज फरमाया, ऐ मेरी कौम, तुम वो बेहयाई करते हो जो तुमसे पहले दुनिया में किसी ने ना की थी। तुम तो औरतें छोड़ के मर्दों के पास जाते हो, तुम तो हद से गुजर गए। लूत अलैहिस्सलाम के इस पैगाम पर कौम ने उन्हें इंतहाई बेहयाई का मुजाहरा करते बस्ती से ही निकल जाने का कहा कुरान की जबान में, और उसकी कौम का कुछ जवाब ना था मगर यह कहना था कि इनको अपनी बस्ती से निकाल दो, ये लोग तो पाकीज़गी चाहते हैं।
جب لوط علیہ السلام نے مزید تلقین شروع کی تو قوم غصے سے بھڑک اٹھی اور کہا کہ اے لوط، ابھی نصیحتیں بند کرو، اور اگر سچے ہو تو پھر وہ عذاب لا کے دکھاؤ جس کا تذکرہ تم کر کے بار بار ہمیں ڈراتے ہو۔ اہل سدوم کے ساتھ لوط علیہ السلام کے مذاکرات جاری تھے کہ عذاب کے فرشتے دو حسین و جمیل لڑکوں کی صورت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے تو قوم نے لوط علیہ السلام کے مکان پہ ہی چڑھائی کر دی۔ قوم دروازوں پہ پتھر برسانے لگی کہ ان لڑکوں کو ہمارے حوالے کرو، اور جب دروازہ ٹوٹ گیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حکم سے لوط علیہ السلام اپنے خاندان سمیت وہاں سے نکل گئے۔ ان کی بیوی نے ساتھ جانے سے انکار کر دیا، اور پھر آخر شب ایک بہت ہی ہیبت ناک چیخ نے اہل سدوم کو تہو بالا کر کے پوری بستی کا تختہ اٹھا کے اس پر پتھروں کی بارش کر دی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب ایک قریبی علاقے کی پہاڑی سے طلوع آفتاب کے بعد اپنی بستی یعنی سدوم شہر کی طرف دیکھا تو وہاں ہلاکت و بربادی کے نشانات کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ پتھروں کی بارش کے دوران ہر شخص پہ وہ پتھر گرا جس پہ اس شخص کا نام لکھا تھا، اور یہ پتھر اس کثرت سے برسے کہ پوری بستی ان سیاہ جلے ہوئے پتھروں سے ڈھک گئی، اور یہ پتھر آج بھی وہاں موجود ہے۔ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک یہ صورتحال نہ پیدا ہو جائے کہ زمین پر کوئی ایک شخص ایسا نہ رہے جس کی اللہ کو ضرورت ہو۔ نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی کہ دن کی روشنی میں علل اعلان رستوں پر بدکاری ہوگی، اور کوئی شخص اس پہ اعتراض نہیں کرے گا اور نہ ہی اسے ہٹانے کی کوشش کرے گا۔ اس روز معاشرے کا بہترین شخص وہ ہوگا جو زانی مرد سے کہے گا کہ تم نے اسے رستے سے تھوڑا ہٹا لیا ہوتا، اور یہ بات کہنے والے کی اس دور میں وہی حیثیت ہوگی جو آج ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اور پھر صحیح بخاری و مسلم میں کئی جگہ یہ روایات بھی کہ شراب و زنا عام ہوگا، تو پھر جن گناہوں کی پاداش میں قوم لوط بدترین عذاب کی مستحق ٹھہری، کیا قانون سزا و جزا میں تبدیلی ممکن ہے؟ ہرگز نہیں۔ ایک اور عام پیش گوئی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشارہ موٹر گاڑیوں کی طرف تھا، اسے ابن عفان اور حاکم نے اس طرح روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں میری امت کے کچھ لوگ پالانوں سے ملتے جلتے زینوں پہ سوار ہو کے مساجد کے دروازوں پہ اتریں گے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی کہ آسمانوں سے عام بارش تو برسے گی لیکن زمین سے کچھ نہ اگے گا۔ وقت کے بارے میں فرمایا کہ قیامت تب تک قائم نہ ہوگی جب تک زمانے آپس میں نہ مل جائیں۔ سال مہینے کے برابر ہو جائے گا، ہفتہ دن کے برابر اور دن گھنٹے کے برابر، اور گھنٹہ ایک چنگاری کی صورت جو کہ چمک کے فوراً بجھ جاتی ہے۔ یہاں یہ سوال عام ہے کہ جب سال میں اتنے ہی دن ہیں جتنے پہلے زمانوں میں ہوتے تھے، یعنی عیسوی سال میں 365.25 اور اسلامی سال میں 354.36، یہ تعداد تو پہلے بھی اتنی تھی اور آئندہ بھی اتنے ہی مہینوں، گھنٹوں، دنوں اور ہفتوں کا حساب کتاب، تو پھر اس حدیث کا مفہوم آخر کیا ہے؟ اس سوال کا ایک
गैर फलसफियाना लेकिन हकीकत पसंदाना मुख्तसर सा जवाब शायद सिर्फ इतना बनता है कि वक्त से बरकत उठ जाएगी। बरकत वो शय है कि अगर किसी भी जगह मौजूद हो तो फवाइद कई गुना बढ़ जाते हैं, और अगर ये बरकत वक्त में आ जाए तो थोड़े से वक्त में सदियों का काम हो जाता है। ये बरकत माल में आ जाए तो चंद 100 रुपयों में हजारों का काम निकल आता है। बरकत हो तो एक प्लेट खाना बहुत सौ के लिए काफी, और अगर ना हो तो तमाम दस्तरख्वां भरा होने के बावजूद लोग भूखे रह जाते हैं। मसलन हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने सिर्फ 55 साल की उम्र में इतनी तसानीफ छोड़ी कि आज 60 साल की उम्र पाने वाला शख्स उनको पढ़ ही नहीं सकता। उनकी सिर्फ याकूत और हदाया ही 40 जिल्दों पर मुश्तमिल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो दुआ तो आपको याद ही होगी कि ए अल्लाह, तूने मुझे जो कुछ अता फरमाया उसमें बरकत भी दे। आज दुनिया तारीख की बदतरीन मुफलिसी की लपेट में है। 1.25 अरब इंसान पीने के पानी से महरूम है और हर 6 में से एक शख्स इस वक्त भूखा है। दुनिया की कुल आबादी का सिर्फ 1% यानी सिर्फ 1% लोग दुनिया की निस्फ फीसद दौलत पे काबिज है, और ये रकम 110 खरब डॉलर से ज्यादा है। गोया सिर्फ 85 अफराद 350 अरब इंसानों से ज्यादा अमीर हैं। फिर क़यामत की वो निशानियां जिनकी खबर एक बड़े वाकई की सूरत हमें दी गई, और वो सरजमीन अरब में रोनुमा होगा। मशरिक़े वुस्ता की गलियों, वादियों, शाहराहों और पहाड़ों पर जारी कत्ल गारत, बेचैनी, अफरा तफरी और मुख्तलिफ गिरोहों का अचानक उभरना, और इस कदर बर्बरियत और दरिंदगी का मुजाहरा के हुकूमतें गिरती जा रही हैं, सरहदें मिट रही हैं और रियासतें बर्बाद होकर बिखर रही हैं। वहीं फिर उस शख्सियत का भी ज़हूर होना है जिनका नाम गरामी इमाम मेहदी होगा। वो कब, कहां और किस तरह सामने आएंगे, अगली नशिस्त में गुफ्तगू जारी रहेगी। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदो नवाह के लोगों का सफा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।